screen record हो रही है. Okay, I'll just speak a little bit louder. Okay. Okay. So वहीं से हम स्टार्ट करते हैं इस बटन से. ठीक है, मैं ये चीज़ें डालता हूँ. एंड सबसे पहले हम देखते हैं, ये तो चल ठीक है, यहाँ तक हमारे ऑलवेज बेसिक्स आ गए. बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. ठीक है, अभी हम देख रहे हैं थोड़ा सा यूज़ केसेस, मतलब नॉट यूज़ केसेस, काइंड ऑफ एप्लीकेशन हम यूज़ कैसे करते हैं किसी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट में. ओके, अभी तक हमने सारी वी डिड ऑल दी लॉजिकल थिंग्स, राइट, like mathematical, how to do mathematical functions in JavaScript, or how to perform logical operations, right, or how to prepare these functions or different data types, right. Objects are there, arrays are there, strings, integers are there, floats are there. Okay, so all these things make the base of your JavaScript. Okay, so now first of all, starting with selectors. Okay, now what do I mean by selectors? Selectors, see, when just a second. When we design a specific span or specific button, like suppose I want to design this button, right, so right now I have just designed it with Tailwind here only. Okay, but suppose I want to design this button in CSS. Okay, so what do? I give it an ID. Okay, btn, and as this style.css is linked with the HTML here, right, at this time. So here I'll use a selector. Okay, we learned 3 types of selector. One was directly the tag name. I can either design by directly giving the tag name, okay, like this button. But what's the disadvantage of this? The main disadvantage is that all the buttons in the website gets designed the same way. Okay, so for particularly selecting this, what we'll do, we'll use the ID selector. Okay, and how this ID selector works? Hashtag btn. Inside this, we'll do all of our this. Okay, so this will particularly design this button only. Okay, so one selector was the ID, that is using this hashtag. Second selector was dot, that we had already done, that will refer to the class names. Okay, and third one was directly using the tag name. Okay, these are the 3 selectors. Okay, similarly we'll be using selectors in JavaScript also. Okay, how do we do that in JavaScript? Suppose, why do we need to do that? Okay, suppose I want to do anything, ठीक है, मतलब do any function on this text. Okay, so I have to select this particular text from the whole website, right? So for that I need to select this text only. ठीक है, so how will I select? Let's give it a class. Okay, अच्छा, there is a class text already there. Okay, yes, there is already a class attribute here, right? So we'll give it another class separated by space. Okay, some custom class. See, this all are one of the Tailwind classes, right? Text to Excel, p-2 text plan. Okay, now we are giving it a custom class to select it, or instead of class, let's give it an ID. Okay, heading text. Okay, so that we can use heading -text to select this text in JavaScript. Okay, how will we do that? Let's define a variable and store this element in that variable. Okay, so suppose I want to do anything with this element, I'll perform that with that variable. Okay, see, what am I doing? Const first heading equals to document. Okay, document is a keyword in JavaScript. Okay, that refers to this body. Okay,
I mean this website, anything in this website you want to select, just you need to do document dot get element. There are 5 types of, like, basically 4 types. You can select an element by id, ठीक है, get element by id, either get elements by class name, get elements by name, or get element by tag name. Okay, these 4, basically these are the main selectors. Okay, what's the difference between name and tag name? Does anyone know? I mean, name और tag name में क्या difference होता है? मतलब आईडी तो हमने किया, ओके, क्लास नेम भी किया जो डॉट करके करते हैं, हमने डायरेक्टली एक टैग नेम से भी देखा था, डायरेक्टली मैंने बटन लिख दिया, बट ये नेम और टैग नेम में क्या डिफरेंस है? चैट सेक्शन ऑडियो नहीं था, स्क्रीन गूगल मीट के रिकॉर्ड कर, ओके, बट नो प्रॉब्लम। अभी मोस्ट प्रोबेबली भाई ये स्क्रीन रिकॉर्ड होगी। अच्छा ठीक है, तो आई गेस आइडिया नहीं है इतना नेम एंड टैग नेम में डिफरेंस, राइट? तो सी, नेम एंड टैग नेम में क्या डिफरेंस है? टैग नेम तो वही होता है हमारा, ओके, इसको मैं कमेंट करता हूँ। टैग नेम तो यही होता है, डायरेक्टली स्पैन, ठीक है। अदर देन क्लास एंड आईडी, वेट, अदर देन क्लास एंड आईडी देयर इज़ अ नेम टैग ऑल्सो, ओके। ये नेम टैग अभी हमारे जावास्क्रिप्ट में ही काम आएगा, ठीक है। ये मैंने अभी तक नहीं बताया था बिकॉज इसका HTML और CSS में कोई काम नहीं है, ओके। नेम विल वर्क विद नेम्स इन जावास्क्रिप्ट, ओके। करेंटली ऑल्सो इट हैज़ नो यूज़ ऑफ अस, ठीक है। तो इसको अभी हम हटा देते हैं, बट यही नेम है जो वहाँ पे रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे क्लास देते हैं, जैसे आईडी देते हैं, सिमिलरली वी गिव नेम्स टू एलिमेंट्स, ओके। तो we can simply select either by using id, class or anything, ठीक है। get element by id, okay, and see document dot get element by id, right? So this is a method, dot get element by id, okay. Most probably document is an object, okay. See, suppose document is a keyword given by JavaScript to us, okay, that refers to the body of the website, okay. So suppose this in the back, I am talking about in the background, okay, like a document will be like something like an object, okay. I told you what is an object, right? जो पाइथन से है और वो डिक्शनरी समझ गए, एंड जो नहीं है वो जस्ट दिस इज़ अ की वैल्यू पे है, ओके। मतलब देयर इज़ अ की एंड देयर इज़ अ वैल्यू, ओके, लाइक नेम तो समथिंग, ओके, बट लेट्स, ओके। तो अब सी, डॉक्यूमेंट इक्वल्स टू इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ओके, इस ऑब्जेक्ट के अंदर देयर इज़ अ फंक्शन, ओके। और इन्होंने फंक्शन डिफाइन किया है ऐसे करके, ओके। तो ये है हमारे बैकग्राउंड में, मतलब डॉक्यूमेंट कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये की है और ये उसकी वैल्यू है जो कि एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर इनके जावास्क्रिप्ट वालों का खुद का कुछ कोड होगा, ठीक है। तो जब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगा के कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तब यही फंक्शन है जो बैकग्राउंड में इस ऑब्जेक्ट का कॉल हो रहा है, ओके। बिकॉज सी, हमें किसी ऑब्जेक्ट का कोई वैल्यू एक्सेस करना पड़ता है तो कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट डॉट और जो भी की है, या तो डॉट करते हैं या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग में नाम लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने डॉट किया, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इसको मैं बस कमेंट कर दूँगा, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड पैरेंथेसिस के अंदर ये एक फंक्शन है तो ये एक पैरामीटर लेगा, राइट। यहाँ पे भी देख रहे होगे एक फंक्शन है, ये फंक्शन ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर और कर्ली ब्रेसेस, जिसके अंदर कुछ ना कुछ कोड होगा इनका, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपना आईडी पास करेंगे। आईडी क्या थी? हेडिंग हाइफन टेक्स्ट, जो कि हमने यहाँ पे डाली थी, आईडी हेडिंग टेक्स्ट स्पैन। तो अब हमने क्या किया, हेडिंग टेक्स्ट आईडी से गेट एलिमेंट बाय आईडी,
मतलब इससे हेडिंग टेक्स्ट आईडी से हमने एक एलिमेंट ले लिया, हमें एक एलिमेंट मिल गया HTML का, एंड उसको हमने फर्स्ट हेडिंग के अंदर स्टोर कर दिया, फर्स्ट हेडिंग जो वेरिएबल है उसके अंदर, ठीक है, ताकि अब हमें कुछ भी काम करना होगा तो हम इस फर्स्ट हेडिंग वेरिएबल से काम कर लें, ठीक है। बार बार हमें इतना लंबा कुछ कॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्यूमेंट से इस आईडी का कोई एलिमेंट निकाल के दूँगा, ओके। तो अब सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, हम इस एलिमेंट को ही प्रिंट कर देते हैं, पूरे एलिमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है, ओके। हियर इज आवर कंसोल स्क्रिप्ट JS 219, ओके, नल प्रिंट किया इसने, ऑन फर्स्ट हेडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ कैटेगरी आईडी हेडिंग टेक्स्ट, अच्छा ठीक है। एक दूसरी चीज़ प्रिंट करते हैं, नल क्यों कह रहा है, हेडिंग टेक्स्ट, सॉरी देयर वॉज अ माइनर मिस्टेक, मतलब मिस्टेक नहीं कहते इसको, दूसरा तरीका ऐसे देखना, ये जो स्क्रिप्ट वाली स्टेटमेंट थी इसको हमने अभी हेड टैग में डाल रखा था, राइट, एंड हेड टैग जो होता है वो बॉडी से पहले होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बॉडी स्क्रीन पे आई उससे पहले ही ये हमारा जावास्क्रिप्ट रन हो गया, ठीक है। तो अगर बॉडी स्क्रीन पे आई ही नहीं है तो इसको ये जो जावास्क्रिप्ट है script.js, इसको इस आईडी का कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए ये नल दे रहा था, बट अभी देखो अभी ये एलिमेंट दे रहा है, span डॉट ई क्लास ऑन क्लिक और ये सब, ये चीज़ देख रहे हो, मतलब इसने हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया और इसने हमें उसका HTML का कोड दे दिया, और वो जो HTML है वो हमने एक वेरिएबल में डाल दिया। अब हम इस वेरिएबल से अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट हेडिंग डॉट क्लास लिखा तो ये क्लास, ये जो स्ट्रिंग है इतनी बड़ी टेक्स्ट से लेकर बोल्ड तक ये प्रिंट हो जाएगी। मैंने डॉट ID लिखा, ठीक है, तो हेडिंग टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। डॉट ऑन क्लिक लिखा तो चलो ऑन क्लिक तो एक फंक्शन दे रहा है तो वो फंक्शन ही कॉल हो जाएगा। और अनटिल मतलब एट द लास्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है हर HTML एलिमेंट की, ठीक है, डॉट इनर HTML, फाइन, लाइक मैं इनर HTML करूँ, सो व्हाट दिस विल डू, दिस विल रिटर्न, दिस विल रिटर्न दी मतलब any HTML that is inside this element, okay, first heading element that I got from finding an element having ID this heading text, okay. So now let's see what this will print. It will print whatever is inside this element, okay. What is this element? This element is a span, and what is inside this span? This text, first functional website will create this. When we save it, it will print first functional website with JS, okay. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक क्लियर हुआ है या नहीं ये बात है। अब इसी पे थोड़ा भी आगे देखता हूँ, एक सेकंड सर इसमें गेट एलिमेंट बाय क्लास भी हो सकता है, हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है। देखो उसमें दूसरी चीज़ है जो आईडी के अलावा जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना सर, जितने मेथड्स हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी हो गया, ठीक है, इसके अलावा हो गया मेरे पास गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय नेम एंड गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। ये तीनों जो है ये एक एलिमेंट रिटर्न नहीं करते हैं, ये एरे ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो अगर हम गेट एलिमेंट बाय आईडी के बजाय कॉन्स्ट एलिमेंट्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट, अगर देखोगे तो गेट एलिमेंट बाय आईडी है बट ये सारे गेट एलिमेंट्स हैं,
गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय नेम, है ना। ऐसा इसलिए है बिकॉज क्लास नेम, नेम, टैग नेम ये मल्टीपल हो सकते हैं, राइट। क्लास नेम में मैंने बताया था, आईडी मैंने बताया था कि एक ही एलिमेंट के पास हो सकती है, बट एक सेकेंड, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, एक एरे ऑफ एलिमेंट आ जाएगा एंड हमें उसका इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट 0, स्क्वायर ब्रैकेट 1, स्क्वायर ब्रैकेट 2, ओके, वैसे करना पड़ेगा। अगर हम वो भी करें तो एलिमेंट्स बाय आईडी, और ये तो नहीं था, BTN था, राइट। अब एक बार हम प्रिंट करते हैं तो देखो HTML कलेक्शन, इसको खोलेंगे जब तो लेंथ 0 क्यों आ रहा है, BTN नाम का क्लास नहीं है, अच्छा आईडी क्लास पे लेते हैं, तो इस स्पैन को क्लास से लेते हैं, क्लास 1, और बटन को भी सेम क्लास से लेते हैं, क्लास 1, और अब हमें क्लास 1 प्रिंट करते हैं। देखो HTML कलेक्शन, इसको एक्सपैंड करेंगे तो देर आर 2, 0 एंड 1। 0th इंडेक्स पे हमारा एक स्पैन है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा एक बटन, ओके, जिसका हैशटैग बटन मतलब आईडी बटन है, क्लास नेम ये सारे, ओके। एंड फिर हम इसको अगर इसका एक इंडेक्स यूज़ करें 0, क्योंकि ये तो एक एरे है, ठीक है, तो एरे है तो एरे का फर्स्ट एलिमेंट 0 मतलब हमारा जो स्पैन है, ये स्पैन प्रिंट हो जाएगा। और अब हम इसके आगे लगा दें डॉट इनर HTML, तो ये वही सेम काम करेगा जो ये करता है। पहले हमने 0th एलिमेंट निकाला इस क्लास से एंड देन हमने उसका इनर HTML, ओके। तो अब बताओ एक बार, ये चीज़ क्लियर है यार, ओके सर, बाकी एक बार बता दो। ओके, क्लियर विश्वा, क्लियर साक्षी, बाकी सब भी बता दो एक बार। शंकर, जय, माली, और ठीक है, हिमाली को क्लियर है, क्लियर शंकर। ओके, अगर इतना क्लियर है तो मतलब ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ थोड़ा सा। अब हमें, अब देखो, अब हमें सिलेक्टर्स आ गए, ओके। अब इन्हीं सिलेक्टर्स को हम चेंज, मतलब इन्हीं सिलेक्टर्स पर हम काम भी कर सकते हैं, जैसे कि सपोज देखो, इसमें मैंने क्या किया, पहले मैंने एक फर्स्ट हेडिंग वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने एक एलिमेंट को स्टोर कर दिया, हेडिंग टेक्स्ट आईडी, जिसकी भी आईडी होगी उस एलिमेंट को मैंने इसमें स्टोर कर दिया। उस एलिमेंट का पहले मैंने प्रिंट कर दिया इनर HTML, उसके अंदर जो भी HTML होगा, हो सकता है खाली टेक्स्ट हो सकता है कोई और HTML हो, मतलब इमेज या कुछ स्पैन टेक्स्ट या कुछ प्रिंट किया। एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया, फर्स्ट हेडिंग डॉट इनर HTML, मतलब फर्स्ट हेडिंग का जो इनर HTML है उसको हेलो वर्ल्ड के इक्वल कर दिया। मतलब पहले इसके अंदर जो भी HTML था इस एलिमेंट के अंदर, हो सकता है वो खाली टेक्स्ट था या हो सकता है कोई और HTML कोड हो, सब हटा के एक सिंपल स्ट्रिंग हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। सेव करके देखते हैं क्या होता है, हेलो वर्ल्ड बन गया, राइट। इसका इनर HTML ही चेंज कर दिया,
ओके, अब ये चीज़ काम कैसे आ सकती है, एक चीज़ देखें। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, क्लिक, ठीक है, और ये क्लिक लगा देते हैं इस बटन पे, तो मतलब ऑन क्लिक जब हो तो ये हमारा क्लिक फंक्शन कॉल होगा। अब हम इस पर क्या करेंगे, यही दोनों पहले वेरिएबल, दोनों एलिमेंट्स को देते हैं पहले, देन उसके बाद हम फर्स्ट हेडिंग डॉट इनर HTML को कर देंगे क्लिक। ठीक है, अब देखो हमने क्लिक फंक्शन बनाया है, फंक्शन क्लिक, पैरेंथेसिस एम्प्टी है, कोई हम पैरामीटर नहीं ले रहे। सर ये फिर से रिपीट करो ना, ये वाला या फिर ये वाला जो हमने इक्वल किया था। अच्छा, मतलब देखो हमने कुछ किया नहीं, अभी मैंने बस ये दिखाया कि फर्स्ट हेडिंग और क्या जो इनर HTML है, पहले हम उसको अभी प्रिंट कर रहे थे ना, फिर उसको अब हम इक्वेट कर रहे हैं कि मतलब एक नई वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, कि फर्स्ट हेडिंग जो भी एलिमेंट है उसके अंदर जो भी HTML है उसको हटा के एक स्ट्रिंग रखो बस, यू क्लिक द बटन करके, ठीक है। और इसी चीज़ को अब हम एक फंक्शन में डाल रहे हैं, फंक्शन क्लिक कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारा कोड है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उस वेरिएबल में ये एलिमेंट स्टोर किया, और इसी एलिमेंट का जो इनर HTML है, ठीक है, उसको हम चेंज करते हैं, यू क्लिक द बटन कर देंगे, क्योंकि ये फंक्शन तभी कॉल हो रहा है जब इस बटन को क्लिक हो रहा है, मतलब हमने ऑन क्लिक पर ही लगाया ये क्लिक फंक्शन। तो इसको मैंने सेव किया, और अभी देखो, अभी ये टेक्स्ट क्या है, फर्स्ट फंक्शन वेबसाइट विद JS। अभी मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करके कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट हेडिंग डॉट इनर HTML, एक सेकेंड, क्लिक फंक्शन ही कॉल नहीं है, ऑन क्लिक, इसको ऊपर कर देते हैं, उसमें दिक्कत आएगी। अभी डिलीट अकाउंट को यूज कर दिया, डिलीट अकाउंट ये वर्क कर जाएगा, वो क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, ओके, क्लिक जो वर्ड होगा वो हो सकता है कि कोई रिजर्व वर्ड होगा, मतलब काफ़ी वर्ड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रिजर्व होते हैं, जैसे कि मान लो कोई, मतलब काफ़ी कीवर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन एंड इन सब लैंग्वेज में
यूज़ हो रहे होते हैं ना, जैसे कि हमारा फॉर कीवर्ड हो गया या इफ़ एल्स, ये सारे कीवर्ड्स हो गए, वाइल, इनको हम एज अ वेरिएबल नेम या फिर एज अ फंक्शन नेम ये सब यूज़ नहीं कर सकते। तो क्लिक भी पूरे जावास्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं कोई कीवर्ड होगा, इस कारण से वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो क्लिक 2 करके हमने किया तो ये हो गया। पर ऊपर का इनर HTML तो कंसोल में पर ऊपर का इनर, अच्छा मतलब ये इनर HTML प्रिंट हो रहा है, तो वो ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कह रहा हूँ। मतलब ये चीज़ जो है ये इससे जुड़ी हुई नहीं है, जो मैंने क्लिक वाली चीज़ बताई। मतलब क्लिक वाली जो प्रॉब्लम है ये इस वजह से था क्योंकि हमने इस बटन को एक फंक्शन का नेम दिया था, क्लिक और ब्रैकेट, एंड देन वो क्लिक फंक्शन कॉल हो रहा होगा जो जावास्क्रिप्ट में होता होगा या कुछ और होता होगा जावास्क्रिप्ट में। तो हल्का सा कहीं क्रैश कर, सॉरी मैं क्या बोलता हूँ, एक सेकेंड, आई लॉस्ट। ठीक है, तो मतलब यही था, क्लिक फंक्शन क्लिक कीवर्ड में प्रॉब्लम आ रही। ओके, जो ऊपर वाला कोड था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज उसमें कोई ऐसा कीवर्ड वगैरह थोड़ी यूज़ कर रहा है। वो हमने ऑन क्लिक, ये एक एट्रीब्यूट है, ऑन क्लिक ये यूज़ किया। फंक्शन नेम हमारा कस्टम होना चाहिए, यहाँ पे कोई कीवर्ड वाला चीज़ नहीं आनी चाहिए। ऑन क्लिक तो ऑलरेडी कीवर्ड है ही। तो ठीक है, तो ये देखो, इसको रीलोड करेंगे हम। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है, फर्स्ट फंक्शनल वेबसाइट विद जेएस, क्लिक करते ही चेंज हो गई, यू क्लिक द बटन, क्योंकि हमारा ये क्लिक टू फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अब हम एक और इसमें इफ एल्स लगा देते हैं थोड़ा सा, कि अगर इफ़ फर्स्ट हेडिंग का जो इनर HTML है ये ऑलरेडी ही ये हुआ है ना, अगर ऑलरेडी ही हुआ तो हम फर्स्ट इनर HTML को हेलो वर्ल्ड कर देंगे, एल्स में ये वाला काम करेंगे। इस इफ एल्स ब्लॉक को समझे, मतलब अगर फर्स्ट हेडिंग का जो इनर HTML है वो ऑलरेडी यू क्लिक द बटन है, बिकॉज अब देखो हमने एक बार तो क्लिक कर दिया है ना, एंड आप दोबारा क्लिक करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी यू क्लिक द बटन है, तो अब ये चेक करेगा, अगर ये चीज़ है तो हेलो वर्ल्ड, अगर ये चीज़ नहीं है तो ये यू क्लिक द बटन। ओके, तो एक बारी बारी से चेंज होता रहेगा। मतलब जैसे अभी अगर देखें फर्स्ट फंक्शनल वेबसाइट, यू क्लिक द बटन, हेलो वर्ल्ड यू क्लिक द बटन, हेलो वर्ल्ड यू क्लिक द बटन। राइट, वो एलिमेंट 2 वाला वापस समझाइए ना। अच्छा ये चीज़, अच्छा ओके, ये देखो इसमें मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सा कुछ नहीं है। ये जैसा अभी हम क्या कर रहे थे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जावास्क्रिप्ट में 2 तरीके हैं क्लास नेम लेने के। एक है कि हम सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, एक है हम मल्टीपल, मतलब लिस्ट ऑफ एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हमें एरे ऑफ एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मल्टीपल सिलेक्शन वाले सिलेक्टर्स हैं, जैसे कि क्लास नेम, टैग नेम और नेम। ठीक है, ये सब जो होता है ये वो सिलेक्टर्स हैं जो हमें एरे ऑफ एलिमेंट्स देते हैं। जैसे अभी हमने हेडिंग टेक्स्ट आईडी से ढूंढा कौन सा एलिमेंट है जिसका आईडी ये है, और उस एलिमेंट को हमने वेरिएबल में स्टोर किया और उसको प्रिंट किया। इनर HTML नहीं, एलिमेंट को ही हमने प्रिंट किया था, तो तब वो एलिमेंट प्रिंट हो गया था डायरेक्टली, राइट, स्पैन करके और जो भी उसकी चीज़ें थी। तो वैसे ही ये एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, क्योंकि क्लास नेम मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि आईडी हम किसी एक एलिमेंट को ही दे सकते हैं पूरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मतलब यूनिक आईडी। ठीक है, बट क्लास नेम, सेम क्लास नेम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के पास भी हो सकती है। इस वजह से गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है, मतलब मल्टीपल एलिमेंट को गेट करना। ठीक है, तो अब क्लास 1 से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक एरे बन के आ जाएगा। ओके, एरे ऑफ मल्टीपल HTML एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स 2 जो है ये एक एरे हो गया, और इस एरे का हमने 0th एलिमेंट
ठीक है, 0th एलिमेंट जो भी होगा। मैंने अभी क्या किया था, क्लास 1 जो है इस स्पैन को भी दिया था और इस बटन को भी दिया था, ठीक है। तो 0th पोजीशन पे सबसे पहला टेक्स्ट ये स्पैन ही होगा। तो एलिमेंट्स टू 0th एलिमेंट, 0th मतलब ये, इसका डॉट इन HTML, तो डॉट इन HTML क्या आ जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पे 1 करता तो ये टेक्स्ट प्रिंट होता, डिलीट माय अकाउंट। ये देखो, डिलीट माय अकाउंट, राइट, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे ये बटन है, तो इसका इनर HTML प्रिंट हुआ, राइट। मतलब इसको एज अ 1 बोलो। अच्छा ठीक है, समझ आ गया ना, ठीक है। तो और भाई अब देखो हमने इफ एल्स भी लगा लिया, ठीक है। इफ एल्स के हिसाब से भी चीज़ें चेंज होती हैं, राइट। अब इसी चीज़ से आप लोग पता नहीं मतलब काफ़ी कुछ अलग अलग डायरेक्शन में दिमाग लगा सकते हैं। अब देखो हमारी इस वेबसाइट जो थोड़ी थोड़ी डायनेमिक बनने लगी है ना, अभी तक सब कुछ काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक होता था। अब क्या हो रहा है कि यहाँ क्लिक होने से कुछ चीज़ें हो रही हैं, राइट। इससे हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि क्लिक करें एंड मतलब अभी और इसमें एक दो चीज़ें मैं बताऊँगा। अभी जैसे हमने ऑन क्लिक इवेंट किया है, अगर ये चीज़ समझ आ गई ना, ये सेलेक्टर्स वाली चीज़, तो फिर हमारा इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ छोटी सी फटाफट। ये तो चलो हो ही रहा है, ठीक है। साथ में हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेडिंग का क्लास, ओके, क्लास लिस्ट, ठीक है। देखो फर्स्ट हेडिंग जो है ये एक एलिमेंट है ना, तो हम एलिमेंट से उसकी क्लास भी निकाल सकते हैं, क्लास, ठीक है। अगर मैंने इसको प्रिंट किया तो वो पूरी जो क्लास का स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, ठीक है। बट वी ऑल्सो हैव अ क्लास लिस्ट, ठीक है, एलिमेंट की। उस वो क्या होती है, हमें क्लास जितनी भी क्लासेस उसमें है, ठीक है, उसका एक लिस्ट दे देती है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, डॉट ऐड, और उसमें ऐड कर देंगे हम BG रेड, आई गेस 500, पता नहीं कलर होता है टेलमेंट वालों के पास में, हाँ होता है। देखो क्लिक करते ही ये रेड कलर मतलब BG रेड 500, क्योंकि इस टेक्स्ट के जो क्लास लिस्ट थी, क्लास लिस्ट क्या थी, ये इसकी लिस्ट ऑफ दी क्लासेस है। पहली क्लास text2 एक्सेल, फिर P2, फिर टेक्स्ट ब्लैक, फिर फॉन्ट बोल्ड, फिर क्लास 1, इसकी लिस्ट बनाई उसने। उस लिस्ट में एक ऐड कर दिया उसने एक और क्लास, ओके, एंड दैट क्लास वाज BG-red-500, ओके। अब एक काम करते हैं, यहाँ भी एक हम सेम चीज़ कर देते हैं, BG जैसा ऐड होता है वैसे हमारा रिमूव होता है। कोई क्लास नेम हमें रिमूव करना तो वो हम रिमूव कर देंगे। तो अब देखो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड पे रेड है, वैसे रेड 500, राइट। तो देखो हम क्लास नेम्स को भी ऑल्टर कर रहे हैं, राइट। और हम इसी चीज़ को और कैसे और बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम दो क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। एक क्लास होगा उसके अंदर बढ़िया सी एनिमेशंस वगैरह होंगी, एक क्लास होगा जिसमें कोई एनिमेशन नहीं होगी, स्टार्टिंग होगा, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि सपोज़ कोई बटन क्लिक होए उसके बाद एनिमेशन स्टार्ट हो, ठीक है। तो तब हम ये कर सकते हैं कि पहले उसको हमने कोई क्लास नहीं दे रखी होगी, ठीक है, बट जैसे ही क्लिक होगा तो हम उसकी क्लास लिस्ट में ऐड कर देंगे हमारा जो एनिमेशन वाला क्लास होगा, ठीक है। ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ तक बताओ, ये चीज़ क्लियर है? ये ओके हामिद, ओके आता, बाकी भी बता दो सर, ये चीज़ क्लियर है? अगर ये चीज़ क्लियर होगी ना तो हम HTML के वो करने वाले हैं, इवेंट्स, अलग अलग इवेंट्स। जैसे अभी तक हमने खाली एक ही इवेंट किया है ऑन क्लिक, ठीक है। उसके अलावा 4-5 है काफ़ी जो मतलब मेजॉरिटी टाइम्स यूज़ कर रहे हो। ओके विश्वा, क्लियर? इवेंट लिस्नर अभी ऐड इवेंट लिस्नर रिमूव
अच्छा वो ठीक है, वो भी कर लेंगे, वो मतलब लास्ट में कर लेंगे, पहले नॉर्मल इवेंट्स करने के बाद। हो सकता है शायद वो नेक्स्ट क्लास में होगा, बिकॉज अभी उसी में टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि इवेंट लिस्ट, मैं खुद इवेंट लिस्टर को कम प्रेफर करता हूँ, जब हम डायरेक्टली वहीं से चीज़ें कर सकते हैं। मतलब यहाँ से यहीं पे हम अलग अलग इवेंट्स डाल देते हैं, ऑन चेंज हो गया, ऑन ब्लर हो गया, जो भी। ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं है तो वी कैन मूव ऑन टू इवेंट्स। इवेंट्स मतलब बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काइंड ऑफ ऑलरेडी कर भी चुके हो मोस्टली नहीं, बट आइडिया लग चुका है। इवेंट्स क्या होते हैं? सी, इवेंट्स आर जस्ट मतलब एज द नेम सजेस्ट, दे आर एनी इवेंट, ठीक है, दैट हैपन्स और द यूज़र परफॉर्म्स ऑन एनी एलिमेंट, ठीक है। दैट इवेंट कैन बी इधर अ क्लिक, ठीक है। सी, हर यूज़र का एक्शन इज़ एन इवेंट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो सपोज़ कोई किसी एलिमेंट पे क्लिक करता है, तो उस एलिमेंट के लिए वो एक क्लिक हो गया एक इवेंट, ठीक है। कोई यूज़र उसके ऊपर माउस होवर करवा रहा है, वो भी एक इवेंट हो गया उसके लिए। किसी ने माउस हटा लिया उस एलिमेंट से, वो माउस हटाना भी एक इवेंट हो गया, ठीक है। किसी ने होल्ड करके रखा है, वो भी एक इवेंट है, ठीक है। किसी ने जस्ट प्रेस किया, वो एक इवेंट हो गया। या फिर कोई इनपुट बॉक्सेस होते हैं, राइट। इनपुट बॉक्स में जब हम टाइप करते हैं तो वो चेंज होता है, तो चेंज भी एक इवेंट हुआ उसके लिए। जो इनपुट, जितने भी इनपुट वाले हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, आई होप कि ये सब चीज़ें याद हो HTML की। चेक बॉक्स है ना, बेसिक टेक्स्ट इनपुट, नंबर इनपुट, ठीक है। तो इन पे हम एक चेंज, इनके लिए चेंज भी एक इवेंट है, तो हम उस पर, और इन सारे इवेंट्स, वॉट एवर इवेंट्स आर देयर, ठीक है, what do they helps मतलब what do they enables us is कि we can assign a function, JavaScript function to every event, ठीक है। कि suppose I want कि when this event occurs on this element, call this function, okay। Suppose we are creating a nav bar, okay। So until now we were creating nav bar that was suitable for the desktop view, okay। When we'll move on to mobile view, we would want कि हाँ we should add a hamburger, right, hamburger menu icon, and when the user clicks on that menu appears, ठीक है। तो how that will happen now, because अगर आपको ये वाला फ्लो क्लियर है जो भी हमने यहाँ पे किया, ठीक है, तो now the flow should be clear to you, right, कि that will happen like by default there will be a class name added in that suppose हम एक डिफरेंट मेन्यू बनाएंगे, ओके, एक मोबाइल मेन्यू बनाएंगे, ठीक है, जो कि क्या होगा, जिसकी हाइट और विड्थ पूरे मोबाइल स्क्रीन जितनी होगी, ठीक है। एंड उसके अंदर होगा लिस्ट ऑफ जो भी हमारे nav लिंक्स होती हैं, ठीक है, nav बार की लिंक्स, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल, ठीक है। तो एक nav बार तो हो गया जो डेस्कटॉप के लिए, एक nav बार हो गया जो हमारे मोबाइल के लिए, ठीक है। मोबाइल वाला पूरी स्क्रीन कवर करता है, बट जो डेस्कटॉप वाला है वो खाली टॉप छोटी सी बार, मतलब थिन सी बार कवर करता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऊपर की थिन nav बार है वो विजिबल रहेगी, ठीक है, वो विजिबल रहेगी, बट छोटी स्क्रीन पे हम, अगर टेलविंड आपको याद हो तो हम क्या करेंगे, MD कॉलन लगाएंगे, राइट, MD कॉलन ब्लॉक, अदरवाइज़ वो हिडन रहेगी, ठीक है। तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था टेलविंड में मोबाइल व्यू लेके चलता है। तो अगर वी हैव एडेड हिडन टेक्स्ट इन क्लास नेम्स, ठीक है, तो वो मोबाइल व्यू के लिए, मतलब जो बेसिक nav बार है वो मोबाइल में हिडन रहेगा, एंड इट विल ओनली डिस्प्ले इन डेस्कटॉप, ठीक है। एंड सिमिलरली द मोबाइल मेन्यू विल बी हिडन बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस हैमबर्गर मेन्यू को डिस्प्ले कराएंगे मोबाइल व्यू पे, ठीक है, बट वो हिडन होगा लैपटॉप व्यू एंड डेस्कटॉप व्यू पे, ठीक है। तो नाउ व्हेन, जब हम ऐड करेंगे हैमबर्गर आइकन, तो वील ऐड ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है, कि व्हेन दैट एलिमेंट इज क्लिक्ड, रिमूव द हिडन क्लास नेम फ्रॉम द मोबाइल मेन्यू, ठीक है। अब जैसे वो हिडन क्लास नेम रिमूव हो जाएगा, बिकॉज हम टेलविंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे वो हिडन क्लास नेम हटेगा, हमारा मोबाइल मेन्यू विजिबल हो जाएगा, ओके।
and there will be a cross icon in the mobile menu. When that cross icon is clicked, ठीक है, again on click method, ठीक है, and it will again re-add the hidden class name into the list of classes for that mobile menu. Okay, तो this was one of the use case of the events, right? ऐसे ही हमारा एक अनदर यूज़ केस होता है. चलो यूज़ केस तो अब अभी साथ में कर लेंगे. आई वॉज जस्ट गिविंग अ ब्रीफ कि हाँ इवेंट्स होते क्या. ओके, तो जस्ट लाइक दिस until now we have done only one event on click. ओके, कि जब क्लिक हो तब ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, राइट. सिमिलरली वी हैव मल्टीपल, सपोज ऑन माउस over, what this will do, this will call a function, ठीक है, whatever function we are about to pass, ठीक है, it will call that function when the mouse is being hovered on this. ठीक है, एक तो हमारा होवर पार्ट होता था CSS में कि जब होवर है तो ये डिज़ाइन में चेंज हो जाए, ठीक है. बट सपोज मुझे डिज़ाइन पे चेंज नहीं करवाना है, कुछ और करना है, ऑल हम डिज़ाइन चेंज भी जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम करके देखते हैं. माउस ओवर करके अब ये मैं एक फंक्शन बनाता हूँ. ठीक है, फंक्शन माउस ओवर. ठीक है, अब एक काम करते हैं, या फिर ये काम करते हैं. ठीक है, देखो क्या करेंगे हम. अच्छा, फर्स्ट हेडिंग वैसे ऑलरेडी बना हुआ है ना यहाँ पर, तो यही फर्स्ट हेडिंग को हम यूज़ कर सकते हैं हमारे फंक्शन के अंदर, क्योंकि जो वेरिएबल हमने बाहर डिफाइन किया फंक्शन के, वो तो हम एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर. बट फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, वो चीज़ हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते. तो लेट्स डू फर्स्ट हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट ऐड, या फिर फर्स्ट हेडिंग नहीं, एक्चुअली कॉन्स्ट btn, मुझे बटन को करना है. तो डॉक्यूमेंट, यस, नाउ बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड. अब हम क्या करेंगे, जैसे ओवर, मतलब जब माउस ओवर होगा, ठीक है, ओवर द एलिमेंट होगा, तब ये क्लास नेम ऐड हो जाएगा इसमें. एक सेकेंड, कुछ हुआ नहीं. फंक्शन माउस ओवर ID btn. ओके, एक्चुअली अच्छा, आई डोंट रिमेंबर. एक चीज़ मैंने बताई थी टेबल में, यानी मोस्ट प्रॉब्ली बताई थी शायद, ये एक्सक्लेमेशन मार्क बताया था आई गेस, राइट. मतलब दिस इज़ फॉर इम्पॉर्टेंट, मतलब दिस इज़ फॉर शोइंग इम्पॉर्टेंस. जैसा हम CSS में तो सर इस माउस ओवर का लिया, CSS में सर इस माउस ओवर के लिए CSS में होवर का प्रॉपर्टी चाहिए क्या? नहीं, मतलब दिस इज़ डिफरेंट फंक्शन, मतलब काम दोनों काइंड ऑफ सेम ही कर रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है. ओके, तो अच्छा ये देखो, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आई टोल्ड यू, मतलब आई टोल्ड यू इन CSS कि देयर इज़ अ प्रॉपर्टी, मतलब देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इम्पॉर्टेंट. if we add important exclamation important after the value of any CSS property, तो इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है, बजाय अगर कोई और हमने दे रखा होगा. ठीक है, सपोज़ अभी मैंने #btn को ये साइज़ दे रखे हैं, ठीक है, अब मैं खाली बटन को कुछ स्टाइल्स दे दूँगा, ठीक है, ये स्टाइल. अब सी, बटन को मैंने दे रखा है 18 पिक्सल, #btn को मैंने 16 दे रखा है. बटन को कैसे पता मैं कौन सा फॉलो करूँ? तो वो फॉलो करे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो नॉर्मल हायरार्की देखेगा, ठीक है. नॉर्मल हायरार्की क्या होती है, मैंने बताया था कि एलिमेंट है, ये बहुत ज़्यादा जनरल डिज़ाइनिंग हो गई, ये सारे बटन्स पे होगी, ठीक है, ये स्पेसिफिक डिज़ाइनिंग हो गई, तो वो इसको फॉलो करेगा. हैशटैग को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा बजाय टैग नेम. प्रायोरिटी कैसे होती है, सबसे कम टैग नेम, उससे ज़्यादा क्लास, और सबसे ज़्यादा हैशटैग ID की डिज़ाइन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा वो. ओके, नाउ अब इसी में, मतलब सपोज़ मुझे स्टिल 18 को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो मैं इसको बता दूंगा कि नहीं जी नहीं, उसको नहीं, इसी को प्रायोरिटी दो, एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पॉर्टेंट दिखा दो. अब देखो बड़ा हो गया ना,
जबकि अगर इसको हटा देंगे तो ये 16 पिक्सल ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो दैट इम्पॉर्टेंट थिंग इन टेलविंड, ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क स्टार्टिंग में। किसी कोई भी प्रॉपर्टी है राउंडेड एलजी, इसको मुझे इंपॉर्टेंट करना है कि देखो ये इंपॉर्टेंट स्टाइल है, इसको नहीं छोड़ना है, सब छोड़ दो बट इसको मत छोड़ो। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग में एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देते हैं, ठीक है। तो अब वही चीज़ हमें अभी भी करनी पड़ रही है, बिकॉज ये बटन को हमने ऑलरेडी एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उसको हटाओ, जब माउस ओवर फंक्शन कॉल हो रहा है तो तब हम ये bgred 500 ऐड कर रहे हैं क्लास नेम, है ना, बट उसमें तो ऑलरेडी हमने बैकग्राउंड दे रखा है, तो हमें बताना पड़ेगा कि नहीं उसको छोड़ो, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। उसके लिए हमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ क्लास नेम को ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो अब ये चीज़ काम करेगी हमारी। अब जब हम होवर करेंगे तो ये रेड कलर हो जाएगा, ओके। अब हमने होवर किया, वो रेड कलर हो गया, बस हमने रेड कलर हटाने का कोड अभी तक कुछ नहीं डाला, इसलिए वो हटा दिए। उसके लिए हमें एक दूसरा इवेंट लगाना पड़ेगा, ऑन माउस ऑन माउस लीव, माउस लीव। अब हम एक माउस लीव का भी फंक्शन बना देंगे, फंक्शन माउस, एक छोटा सा रखा है, अच्छा कैपिटल माउस लीव। माउस क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे bgred को, ठीक है। अब देखें, लाए हटाए हट गया। अब जैसे हमारा CSS का होवर होता है उसी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। बट इस डिज़ाइन पार्ट पे चेंज के लिए हमें इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, बजाय हम उसके क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइक सपोज मैं चाहता हूँ कि यूज़र को मना रखूँ, मना करूँ कि नहीं इस बटन के ऊपर होवर नहीं करना है, ओके। तो वील जस्ट अलर्ट डोंट ट्राई टू टच, वो टच ही नहीं कर पाएगा बिकॉज हल्का सा जाते ही अलर्ट आ जाएगा, डोंट ट्राई टू टच, डोंट ट्राई टू इवन टच दैट बटन, ओके। कुछ भी करके वो जाते ही एरर आ जाता है, राइट। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एरर आ रहा है, माउस लीव इज़ नॉट डिफाइंड, हमने यहाँ पे इसको हटा देंगे, ओके। तो ऐसे करके हम फंक्शंस को यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे और इवेंट्स हैं, जैसे कि ठीक है, मतलब बाकी तो जो इम्पोर्टेंट है वो उनमें से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि नॉर्मल एलिमेंट्स पे ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ठीक है, ऑन माउस लीव, ये सब हो गया। कोई अगर इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स है, ठीक है, तो इसमें में क्या होता है, ऑन चेंज, एक ऑन चेंज भी इवेंट होता है, क्योंकि कि जब उसके अंदर हम कुछ टाइप करेंगे तब क्या कॉल होना चाहिए, या फिर ऑन की डाउन, ठीक है, कि मतलब कोई की उस इनपुट में हम मतलब यूज़र प्रेस करेगा तब क्या हो, ठीक है। उसमें हम ये चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि कोई की प्रेस हो तो हमें चेक करना है कि वो की स्पेस तो नहीं है, क्योंकि हमें स्पेस अलाउ नहीं करना है। सपोज़ यूज़र नेम वाला कोई इनपुट है, हमें उसमें अलाउ नहीं करना है, ओके, कि कोई स्पेस डाले, तो तब ये वाला इवेंट हमारा काम आता है, ऑन की डाउन, कि हमने चेक किया कि जब की डाउन हो रहा है, मतलब जब वो कोई की प्रेस कर रहा है उस इनपुट बॉक्स में, तब चेक करेंगे आप कि क्या जो की प्रेस हुआ है वो स्पेस तो नहीं है, ठीक है। और जब ऑन चेंज होगा तो हर बार ऑन चेंज पे हम ये चेक कर सकते हैं कि मतलब काफ़ी चीज़ें चेक कर सकते हैं, लाइक ऑन चेंज, और हम चेक कर लेंगे कि उसकी लेंथ, मतलब जो भी यूज़र नेम की लेंथ है वो 10 क्रॉस तो नहीं कर रही है, या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स तो नहीं है, या जो भी, ठीक है। ऐसी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे करके हमारे पास मल्टीपल इवेंट्स हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ इसमें थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, मतलब हल्की सी एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। पैरामीटर्स भी आ जाते हैं तो उसमें हल्का सा शायद टाइम लगता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको आज ना करवाऊँ। ऑन चेंज, ऑन की डाउन प्लस ऐड इवेंट लिस्टर,
जो अभी हामिद कह रहा था। ये तीनों चीज़ें हम कल देखेंगे। अभी तक मैंने जितने बताए, मतलब इवेंट्स और इवेंट्स काम कैसे करते हैं, इसमें बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? सब समझा, ऑल क्लियर। ओके, नॉट, नो सर, ऑल क्लियर। ओके अथर्व एंड ओके आप विश्वा को भी नोट, वेरी गुड। बता दो भाई सब, तुम्हारी ऑल क्लियर हो गया। तो सबको क्लियर है तो फिर लेट्स गो। और कितना, और कोई नहीं है? संकल्प बता दो। अच्छा, दो बच्चे, दो लोग भाग गए, ठीक है। अगर संकल्प में कोई डाउट नहीं है तो कैन एंटर द। बाकी किसी को बता दो, अगर किसी को कुछ आता कर रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता। दिस इज़ इट फॉर